Okay, fine. Great. So this is basically the continuation session of KMAP, expression prediction by the SOP KMAP. Almost SOP question has been covered. Only few questions are remaining or pending that we will see in the next couple of days. And today we will discuss some more cases like what are the redundancy cases in the KMAP. Basically, we are learning the KMAP in a very detailed session. We are basically fine. So what are the redundancy cases we will see today? And today I want to start the KMAP lecture from this question. Sometimes in the KMAP questions, numbers are not given. मतलब you can see that these kinds of numbers are not given in the question. कभी-कभी question हमारा इस type से भी पूछा जाता है. So how to solve these types of questions? Okay, I will discuss with you. Just a moment, please. So I'm just opening the template. 1 second. Sir. Yes. I'm waiting, please. Please ask. Anybody want to ask? Sir. Yes, I'm hearing you. Yes, sir. Yes. Sir, actually, I want to ask some question. First of all, I want to ask some question. What's your name? Sir, Ansh. Yeah, Ansh, please tell. Sir, I want to ask some question. Sure, please go ahead. So first question from year 2020. 2020 question has been solved actually. This question we have already solved. And the recording video is already uploaded in the YouTube. You can go through. हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. आप एक बार देख लीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पर्सनली आप हमसे मैसेज कांटेक्ट कीजिए. ठीक है? Okay, sure, sir. Okay. So. Yes, sir. Sure. Control C. 1 minute. I am just opening the template. This is the template I've already created for the KMAP. Only just we need to change this question. Okay. So on these expressions, we have to put the 1. Why 1? See, this expression is in the form of sum of product. Now see, look at the expression. These are inside the brackets are product and outside the brackets are plus sign. That means purely this expression in the form of sum of product. And we have to reduce this expression by KMAP. If we will reduce this expression by the laws, it will take a lot of time. So we have to solve this expression by KMAP. So let's get started. Just a moment. Now see the first set. 1 minute. This is basically the first set. In this A bar, B bar means this is A bar, B bar. Look at the pointer and C bar, D bar. C bar, D bar is this. Means by the combination A bar, C bar, ये combination given है. Now see, this is the combination given in the expression. So on this combination, we have to place the 1. First one. Now look at the second combination. A bar, B bar. Okay, that means this is A bar, B bar. And C, D bar. Where is the C, D bar? A bar, B bar is there. But C, D bar is this. Look at this. C, D bar. And this is A bar, B bar. I'm talking about the second combination. Please concentrate. A bar, B bar. Okay, this is the A bar, B bar. And C, D bar, it is the second combination. So by combining these two, we will get this position. हमें ये position मिलेगी. तो इस पोजीशन पर हमें 1 प्लेस करना है. Okay, if you have any problem, please raise your hand. A bar B. Now A bar B, first of all we have to check ये combination. ये वाला combination हमारा ये है A bar B. And C bar D bar. Where is C bar D bar? Basically C bar D bar is this combination. तो इसको और इसको अगर हम देख कर चलें, A bar B, this is A bar B,
and C bar D bar, and this is C bar D bar. All right, just I'm making the circle. So this is basically the combination of third. So हमें ये वाला position मिल रहा है, यहाँ पर हमको one plot करना होगा. 1 minute. Unnecessary circles are coming, so it will get complicated. Okay, cool. So these three are covered. Now what about this? AB bar. AB bar means this is AB bar, understand? And C bar D bar. So C bar D bar is this. So हमको ये position मिल रही है. Now you can see this is C bar D bar and C bar D bar along with C bar AB bar. Okay, AB bar. So अगर हम इन combinations की बात करें तो हमको ये position मिलेगी. 1 minute. So this will be the position. Now what about this AB bar? AB bar, okay, this is the AB bar. And C bar D, C bar D, C bar D, this is the C bar D. तो इसको अगर हम देखते हुए नीचे आए तो ये पोजीशन है बेसिकली हमारी A B bar and C bar D. Okay, so I am just placing the one over here. Any problem, I will explain it again, no problem. Okay, don't worry. A B bar, where is A B bar? This is A B bar. C D bar, this is C D bar. Block 10. On 10 position, understand, on 10 positions. Now what about the last AB? AB is this, and C bar D bar, C bar D bar, this is the C bar D bar. Understand? So by the expression we have taken the specified numbers. Now the second level is octet, chord and pair. So octet, chord and pair. So can you please help me to create the octet, chord and pair? 2 chord, 1 pair. So this is very good. This is one chord we can create, no problem. And the corner chord we can also create. This is basically the corner chord. Only the new thing in this question that we have to derive the number from the expression. Rest of all the steps are same. Okay. Now what about this one? ये one हमारा किसके साथ adjust हो सकता है? तो अगर हम इसको adjust करना चाहें, तो we have only a single option for adjustment, and that is 9 position 1 can only be adjusted with the 8. Hope you understand. Just a moment, please. Okay. So अगर हमारे पास कोई expression दी जाती है, तो उससे अगर हमको ones generate करना है, तो हम दोनों combination देखते हैं. पहले हम half combination देखेंगे. तो half combination हमारा है A bar B bar, तो हमें A bar B bar यहां से मिल रहा है. You can see. अब इसके साथ अगर हम C bar D bar को combine करें, तो C bar D bar ये है. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको ये सेल मिल रहा है और इस सेल पर हमको वन प्लॉट करना है. If you understand this, so we can go to the next level of reduction. If you have any problem, please let me know. Don't worry about the timings and the course that we have already discussed. Okay? Please answer, please reply, response. There are 8 to 10 participants. Do you have any problem? Zoya, are you there? No, sir. Yes, sir. Okay, can you derive the numbers from the expression? Yes, sir. Arya Kapoor? Arya? Do you have any problem? Okay, Ayan, okay, no problem. Ansh Srivastav? Yes, sir. No problem. Okay, okay, very good. Now what about the reduction part? Just a moment, please. Also CBSE student, Ishika, do you have any problem from this? No, sir. Okay. Can you derive the number from this expression?
Okay. Now, I'm just writing the reduced expression. So, chord 1. What about the chord 1? Chord 1 हमने कौन सा लिया है? 0, 4, 12, 8. And what about the reduced expression of this? क्या होगी? C bar D bar. C bar, very good. C bar D bar. Understand? I'm not wasting the time. ठीक है. What about the chord 2? Chord 2 हमने लिया था corner, अगर आपको याद हो तो 0 to 8 and 10. Okay? So 0 to 8 and 10. तो इस पर जो हमारा chord बन रहा है तो उसमें common terms क्या आएंगे? मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट ही अब रिप्लाई दें. हाँ, क्या आएंगे? B bar D bar. बी बार डी बार. क्या सब एग्री हैं इससे? बी बार डी बार. ओके, अगर कोई एग्री ना हो तो प्लीज रिस्पॉन्स. ठीक है, रिस्पॉन्ड करिएगा तो मैं बता दूंगा. बी बार डी बार, एब्सोल्युटली राइट. तो बी बार डी बार. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट अबाउट द पेयर? पेयर B bar C bar. 8,9 पर. तो 8,9 पे जो हमारा पेयर बन रहा था उसमें अगर हम देखें तो ए बी B bar C bar. ठीक है, दिस इज बेसिकली द. तो ए बी बार सी बार is the pair. No? A B bar C bar is the pair, right? Understand? कैसे? शायद पेयर में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है शायद. तो अगर हम इस पेयर की बात करें तो इसमें ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, और अगर हम इनको अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये दोनों सेट्स हमारे इन्वॉल्व हैं. ए बी बार तो दोनों में कॉमन रहेगा ही, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बार बी बार इस सेट में भी होगा और ए बार बी बार इस सेट में भी होगा, तो कॉमन होगा हमारा ए बी बार. अब इनमें हमें कॉमन देखना है क्या है? सी बार. तो आई हैव रिटन. नाउ वी हैव टू चेक द क्वेश्चन कि हमें गेट किस तरह से बनाना है. तो गेट हमें किस तरह से बनाना है ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल सकता है. सो प्लीज 1 मिनट. सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. इसमें actually reduced by the 4 variable and showing the octal chord and pairs. इसमें बेसिकली बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, ये 2015 से पहले का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें वैसा कुछ मेंशन नहीं है कि यूजिंग द NAND गेट ओनली या assume that variable and their complement are available as input. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आता था, बाद में पेपर 70 मार्क्स का होने लगा, तो उसमें कुछ चीजों में चेंजेस आए, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अमेंडमेंट्स हुए. तो अभी अगर हम चाहें तो इसको हम assume that variable and their complement are available से बना लेते हैं. Assume that variable and their complement are available as input. Understand? For gate के लिए जो हमारी reduced expression आई है उसके लिए. So immediately I'm coming to this section. Okay, now we have to write down the reduced expression also. C bar D bar. We will see some new questions today. Okay, don't worry. Plus A B bar C bar. Understand? This is the reduced expression. So now, how to prepare the gate? So C bar and D bar, because assume that variable and their complements are available in input. So C bar D bar we have to pass directly, then we have to connect it by the AND gate. Now B bar D bar. Okay, B bar D bar. Understand? So now we have to pass this also by the AND gate. Now A B bar C bar. So A B bar C bar, and we have to pass this by AND gate, and finally in a very fast manner just I am connecting these lines by the OR gate. Now this is gate is prepared. I am just copying and transferring in your group so you can take the revision anytime. Okay, fine. Okay,
That's done. Okay, no need to more discussion. Immediately I just want to close, and I don't want to save. 1 minute. Now just I'm looking one redundancy case, and everybody has to participate in this. 1 minute. Okay, just a moment please. I'm not discussing any particular question right now. 1 minute. No need of this question. Okay, don't get confused. 1 minute. See, I'm just plotting some numbers. You have to understand the redundancy case. Okay. In this, there is a chance, a full chance of redundancy. पूरे चांस हैं यहाँ पर redundancy के. सही. मेरे साथ साथ आप लोग देखिए, ठीक है? क्योंकि हमें इसे आपको redundancy समझानी है. तो जब तक हम आप कुछ wrong करेंगे नहीं, तब तक आपको redundancy समझ में नहीं आएगी. Can we make this chord, please? क्या हम ये chord बना सकते हैं? 100% this chord can be constructed. और अगर हम देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये भी कॉर्ड बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन इज रोलिंग, ओवरलैपिंग. सॉरी. नाउ व्हाट अबाउट दिस? कैन वी मेक दिस कॉर्ड? प्लीज आंसर. 0189 का बनाते हैं कॉर्ड. वन मिनट. प्रॉब्लम को डिस्कस करना है यान, इसलिए गलत बना रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम बतानी है. ठीक है, ओके, प्रॉब्लम बतानी है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको गलत बनाया है. तो हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर? हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर? 3 कॉर्ड. एब्सोल्युटली फाइन. और कोई भी कॉर्ड मेरा गलत नहीं है. I have created absolutely all the chords correct according to the rules and regulation of the K-map. But यहां पर redundancy के chances हैं. Redundancy के क्या chances हैं? यहां पर आपके according, हमारे according 3 chords बन रहे हैं. But यहां पर possibility सिर्फ 2 chords की है. तो मैंने आपको बताया कि redundancy की definition ये है कि if there is a possibility of 3 chords and you are unnecessarily making the 4 and 5 chords, तो जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉर्ड्स आप बनाते हैं उनको रिडंडेंट कहा जाता है, जिससे एक एडवर्स इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पे पड़ता है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं. इन अ वेरी डिटेल एंड डेप्थ वी आर डिस्कसिंग द K-map. ओके, नाउ हम इस सॉल्यूशन से बैकआउट होंगे. यहां पर हमने 3 कॉर्ड बनाए, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 कॉर्ड की पॉसिबिलिटी है. कैसे, मैं अभी बताता हूं. आई एम जस्ट इरेजिंग. 1 मिनट. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. First of all, I will cover these are all the ones in one chord. Understand? And after that, ये 2 1 हम रोल करके, मैप रोल करके इनके साथ कोऑर्डिनेट कराएंगे. no. पहले भी हमारे कॉर्ड्स बन रहे थे, अभी भी बन रहे हैं. The difference is that पहले 3 बन रहे थे, अब 2 बन रहे हैं. So this is basically the condition or scenario of redundancy. Understand? This point is clear to everyone? So you have to be very careful. बहुत सोच और समझ के आपको कॉर्ड, ऑक्टेट और पेयर्स बनाने हैं. कंपैरेटिव तक, प्री बोर्ड तक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. आपको नहीं आती हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन अ प्रैक्टिस मोड. ओके, सो आई एम जस्ट clearing. Okay, only in the Carnot map question practice is pending. बाकी सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. हर तरह के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं. ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस केस. ये वाला भी एक केस ले लेते हैं. ओके, आई एम जस्ट कॉपिंग. बहुत केयरफुली आपको इस केस को मॉनिटर करना है. टेस्टिंग. ओके, आपको एक चीज मालूम है कि कुछ चीजें हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, बट सम आर एक्सेप्शनल केसेस जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ. लेट जस्ट सी 1 मिनट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट ऑन द स्पेसिफाइड पोजीशन. 1 मिनट. 3, वेयर इज 3? व्हाट अबाउट 4? 5, 7, 13,
15, 14, 9. अब अगर हम इसमें देखें तो क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन दिस। मेरे साथ साथ आप भी सोचिए, तभी इंप्रूवमेंट होगा। कभी कभी स्टूडेंट टीचर से बेटर सोचते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहले तो हम क्रॉस चेक कर लें, हमारे सारे नंबर सही है। 3 4, 3 इज देयर, ओके। 4 इज देयर, ओके। 5 इज देयर, 7 is there, okay. 13 is there, 15, 14 and 9, okay. हम यहाँ पर जनरली हमारी जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि हम हायर साइड से चलते हैं। तो अगर हम हायर साइड से चलें, अगर हम चलें तो ये क्वाड तो हम बनाएंगे ही। जनरली हर स्टूडेंट इस क्वाड को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि केमैप का रूल ये कहता है। रूल क्या कह रहा है? रूल इज सेइंग दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हायर। हायर इज ऑक्टेट, सेकंड हायर इज क्वाड, देन पेयर, देन सिंगलेट, ओके। नाउ व्हाट अबाउट these सराउंडिंग वंस? इन वन के लिए हम क्या करेंगे? क्वाड की पॉसिबिलिटी तो है नहीं। आर यू ऑल विथ मी? ओके, तो क्वाड की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो नाउ वी विल गो विद द पेयर। Fine. So this is the pair. This is the pair. This is the pair. And this is the pair. Very different case, my dear student. Okay. In the history of KMAP, it's totally a very different case. Okay. Now, what is the result of this basically? KMAP. In this question, we have created one chord and 3 pairs. But in this question, my dear student, chord is absolutely redundant. मतलब यहां पर chord की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केस में ओनली दिस पर्टिकुलर केस, सिर्फ इस केस की हम बात कर रहे हैं कि वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द पेयर इन कंपैरिजन टू द कॉर्ड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। यहां पर जो हमने कॉर्ड बनाया है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इस कॉर्ड को हटा भी दें तब भी हमारे सारे वंस कवर हो जाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ पेयर। With the support of pair. Extreme case, exam में कभी पूछा नहीं गया, never asked in the examination, but you must be aware if you are learning the KMAP, ठीक है। So यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें तो कॉर्ड हमारा रिडेंडेंट है, कॉर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम कॉर्ड के साथ 3 पेयर लिख कर आते हैं then 100% our answer will be wrong, because इसमें कॉर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। How we can eliminate the chord? Just a moment, please look at this case. सबसे पहले आपको ये केस देखना है, ओके। इस केस को माइंड में रखना है, ओके। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस इन सर्कल्स। नाउ हम यहां पर बेसिकली कॉर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सारे वंस को कवर करना, वो हमारा वैसे भी कवर हो रहा है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट विथ मी। This is the best pairs of this question. How many pairs we have created? 1, 2, 3, 4. 4 pairs we have created. And you can see that I have eliminated the chord. Now there is no need of chord in this. अगर हम chord बनाएंगे तो chord कहाँ बन रहा था? Please concentrate. Chord हमारा इन 4 1 पे बन रहा था। तो अगर हम इन पर बना देंगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल द 4s आर ऑलरेडी कवर्ड, सो नो नीड टू मेक द कॉर्ड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली 4 पेयर्स विल बी यूज्ड, ओके। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन,
आई एम आस्किंग प्लीज, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. No, sir. These cases sometimes sir. arises. बहुत ही रेयर केस है हमने कहा, लेकिन हमने कहा आपके साथ डिस्कस कर लें, ये हमारी शीट में भी है. ओके, तो sometime the conclusion is that you have to be very careful while making the chord octet and pair. Okay, there might be some chances of redundancy, there might be some chances of extra. Okay, तो बहुत आपको better way में काम करना है. So this is basically the best solution of this. Instead of creating the chord, we are just giving the preference to the pair in this particular question. ऐसा नहीं कि ऐसा सब में होगा. It's a 1 point chance है, सिर्फ 1 point. 100 में 1% चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए. ओके, वो आपकी प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन. That's a conditional K-map. ये सारे क्वेश्चंस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस आप धीरे धीरे करिए. इनको लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा था. हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. ओके, 10 मिनट के अंदर हम इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, या हाँ, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, a combinational circuit with the 3 input ABC detected an error during the transmission of code. Okay, 1 minute please, I just want to check the participant. Okay, see, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें कार्नोक मैप हमें नहीं बनाना है. ये 2007 का क्वेश्चन है, काफी चेंजेस आए उसके बाद. तो हमको कितना करना है एज पर लेटेस्ट सिलेबस, वो मैं आपको बताऊंगा. इसमें सिर्फ आपको ये करना है, सबसे पहले a combinational circuit of the 3 inputs ABC detecting an error during the transmission of code and gives the output D as 1 if any 2 inputs are low. Okay, मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है. सबसे पहले आपको ये पार्ट देखना है. 3 inputs, आपको एक ट्रुथ टेबल बनानी है जिसमें 3 inputs हो. ओके, 1 मिनट. कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो. तो हम एक्सेल शीट में ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा. 1 मिनट प्लीज. ओके, A, B एंड C, 3 वेरिएबल की हमें ट्रुथ टेबल बनानी है. सी द कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द 3 इनपुट ABC. सिर्फ आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी किसी पे नहीं. सो 0 0 0 0 1 1 1 1. ओके, 4 0 4 1 एंड इमीडिएटली वी हैव टू राइट डाउन 2 0 2 1. एक क्वेश्चन आपका कंडीशनल कार्नोक मैप पे भी जरूर आएगा. उसी का ये बेस और ओरिजिन है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आप समझ लेंगे. डोंट वरी, अंडरस्टैंड. 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सही कर लें. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. ओके, एंड जस्ट सेंट्रली अलाइन. ओके, नाउ my truth table is prepared in front of you. Now see transmission code and give the output D. यानी कि ये आपका जो ट्रुथ टेबल है वो एक आउटपुट भी जनरेट कर रही है और उस आउटपुट का नाम है D. आई एम राइटिंग द D over here as the output. Okay, अब यहां पर आउटपुट किन केसेस में आएगा? ओके, वो केसेस अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. 1 मिनट प्लीज. केसेस ये हैं इफ एनी 2 इनपुट्स आर लो. अगर कोई भी 2 इनपुट आपके लो होते हैं तो आपको उनके अगेंस्ट डी की वैल्यू को 1 सेट करना है. कोई भी अगर आपके 2 इनपुट्स लो होते हैं, कोई भी 2 इनपुट अगर आपके लो होते हैं तो आपको डी की वैल्यू 1 सेट करना है. 1 मिनट. तो हम देख लेते हैं अपनी ट्रुथ टेबल में. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. यहां पर 2 इनपुट्स हमारे लो हैं. यू कैन सी A इज लो, B इज लो. लो मतलब 0, तो हमको D की वैल्यू 1 सेट करनी पड़ेगी. हमने 1 सेट कर दिया. अंडरस्टैंड. और देखते हैं यहां पर भी देखो 2 इनपुट्स हमारे लो हैं 0 0. एटलीस्ट 2 इनपुट्स आपके लो होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो डजंट मैटर. 1
यहां पर आपके दो इनपुट्स लो हैं, यस दिस इज लो एंड दिस इज ऑल्सो लो, तो वी हैव टू प्लेस द वन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग. यहां एक ही इनपुट लो है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो इनपुट लो होने चाहिए, बट इन दिस हम इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अंडरस्टैंड. तो यहां पर थर्ड रो में अगर हम देखें तो हमें इनपुट्स लो दो नहीं मिल रहे हैं, तो वी हैव टू प्लेस द जीरो. यहां पर दो इनपुट्स लो हैं, यस 0 0, वी हैव टू प्लेस 1. Here only one input is low, we have to place 0. Here only one input is low, we have to place 0. Here no input is low, we have to place. Understand? ये हो गया. Please, जितने भी वन हैं हम उनको रेड से डिनोट करे दे रहे हैं ताकि आप समझ लें आसानी से. मेरा पर्पस सिर्फ आपको समझाना है. Understand? Now what we have to do? After placing these ones, you have to write down the min-term simply. और min-term आपको मालूम है कि हम किन बेसिस पे लिखते हैं. min-term हम लिखते हैं वहां पर जहां पर आपके आउटपुट कॉलम में 1 आ रहे हो. तो यहां पर आपका 1 आ रहा है, एक 1 आपका यहां आ रहा है, एक 1 आपका यहां आ रहा है. तो इन्हीं सेल में सिर्फ आप min-term लिखेंगे. एंड आफ्टर राइटिंग द min-term दिस क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली कंप्लीट. आपको कुछ नहीं करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द min-term. तो कैसे लिखेंगे हम min-term? A बार B बार C बार. बिकॉज इस 1 के कंपैरिजन में सारे जीरोस हैं और 0 को हमें 1 बनाना होता है. दिस इज नॉट द न्यू डिस्कशन विथ यू ऑल, ये हम पहले कर चुके हैं. A बार B bar and C, no bar, because C is already 1. Understand? And after that, what about this? A bar B, because B is already 1. C का हमको बार लेना होगा क्योंकि C 0. One more is there. A, B bar, C bar. Understand? Now the final reduced expression will be, just a moment please. आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. पहला तरीका तो ये है कि आपको इसको कार्डिनल फॉर्म में लिखना है. कार्डिनल फॉर्म क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. कार्डिनल फॉर्म हमारा बेसिकली ये होता है एफ ए, जैसा आपको क्वेश्चन मिलता है कार्नोफ मैप का करने के लिए. मैं बताता हूं, 1 मिनट प्लीज. अगर हम ऊपर की बात करें, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल फॉर्म. तो पहले आपको इसको कार्डिनल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको min-terms लिखना है. देन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट. ओके, सो 1 मिनट. हाउ टू राइट द कार्डिनल फॉर्म? BC इज इक्वल टू सिग्मा. ओके, तो सिग्मा हमें एक्चुअली इंसर्ट करना पड़ेगा. आप मान लीजिए यहां पर सिग्मा है. एंड आफ्टर दैट सिग्मा के बाद हम लिखते हैं नंबर्स. ये नंबर्स लिखते हैं. अब ये नंबर्स कैसे आएंगे? ये नंबर्स आएंगे जहां जहां पर हमारे 1 थे उनके करस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर्स आपको लिखना है. तो पहला 1 हमारा 0 पे था, दूसरा 1 आपका 1 पे था, तीसरा 1 आपका 2 पे था. आई एम जस्ट राइटिंग इन अ कार्डिनल फॉर्म. एक और 1 था आपका, वो 4 पे था. नाउ आफ्टर राइटिंग द लास्ट 4, 1 2 3 4, डन. उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आपको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है? जो आपके min-terms निकल के आए थे उन min-terms को आपको यहां पर लिख देना है इस तरह से. A बार B बार C बार प्लस. हम काफी क्वेश्चन इस टॉपिक पे करेंगे. आज तो हमने स्टार्ट किया है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि एक ही बार में आपकी समझ में आए. A B bar C bar. Understand? Now this is perfectly the solution of this question. Okay, please respond everyone. Do you understand? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया आपके? ओके थोड़ा आया समझ में.
अच्छा कोई बात नहीं, हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, हमने कहा कि सिर्फ आप उससे उतना ही क्वेश्चन लीजिए जितना मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन में कहाँ गया क्वेश्चन, काफी नीचे था, ओके ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको तीन इनपुट के लिए एक ट्रुथ टेबल बनानी है। हमने बना ली 3 इनपुट के लिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल। उसके बाद आपको एक और सेक्शन बनाना है डी, ये हमारा आउटपुट होगा। तो अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। किन बेसिस पर आपको आउटपुट लिखना है वो भी कंडीशन गिवन है, अगर देखो लिखा है and transmission of the code and give the output D as 1, मतलब D 1 होगा, कब होगा? If any two of the inputs are low,